The students, I JVN Vishnu Samotia, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Program DETCS First Trimester, Session D Block Electron Configuration. Now we discuss D block electron configurations. D block is a transition element series. So D block electronic configuration, first series of electronic configuration. So we sum up the external configuration of first line transition element as a 4s to 3dn. In any case, we already know that the chromium and copper do not follow in this example. This is a result of very lower energy between to the 3D cell and 4S cell. It is found that the half to totally filled arrangement of orbital is the more stable. Clear? In first series of configurations, on account of the elements like chromium and copper, the energy between the orbital is very less. Therefore it can keep the electron energetic in the D cell. The electron configuration of a D block elements is the advanced periodic table, can be composed and displayed in a table in the table. And second series of electronic configuration. The electronic configuration of the D block element in second series are given below. First compound are 39 atomic number and symbols Y. And second symbols and 14, 41, 42, JR, NV, MB, TC, RU, RH, PD, AG, CD. In electron configuration is 5s to 4d1, 5s to 5d2, 5s1 4d4, 5s1 4d5, and 5s1 4d6. Okay, so electron configuration is similar to the S block and P block elements. Clear? जैसे अपन ने पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, उसी तरह अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. उसमें फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज. फर्स्ट सीरीज जिसमें अपन ने क्रोमियम को छोड़कर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ डिफरेंट होता है अदर एलिमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्रोमियम का हाफ एनर्जी लेवल स्टेबल होता है. क्लियर? तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3D मतलब 1s से रिमूव होके D5 में चला जाता है. ठीक है, ऐसे करके अपने ये हो गया अपने पास डी ब्लॉक सेकंड सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. नेक्स्ट, third series of electron configuration. The electron configuration of the D block element in third series as follows. Similar to the S block and P block elements, and third series are 57 La to 6s2 and 5d1. So 57 La configuration is 6s2 5d1 and 72hf 66s2 5d2. Our electron configuration is 73rta 6s2 5d3. ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट LA 6s2 5d1. तो डी सीरीज यहाँ पे स्टार्ट हो रही है. और अकॉर्डिंग अपन को इससे पहले वाले जो भी अपनी 57 के पहले कौन सी आती है, क्रिप्टॉन अपन को इसमें लेना है. और जियोन अपन को इसमें लेना है. और जियोन के जस्ट बाद क्या आ रहा है 6s2 5d10. तो 54 जियोन आ रहा है. जियोन के बाद में अपन को डायरेक्ट लेना है जियोन 6s2 5d1. तो टोटल 57 हो गए. 54 तो आप 54 तो जियोन के साथ हो गए जो कि नोबल गैसेज है. और 57 क्या हो रहा है, 57 में 54 55 56 57 थ्री एटम्स अपन को ऐड करने. और 3 एटम्स कहाँ ऐड करेंगे, 6s2 2 तो इसमें फिल हो गया और डी में 1 फिल हो गया. ऐसे करके अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन थर्ड सीरीज का ईजिली कर सकते हैं. क्लियर? And four series of electronic configuration, zinc, cadmium and Hg have a higher orbital completely filled both. ठीक है, तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी एज ए हायर ऑर्बिटल इन completely filled. Total orbital are filled in zinc and cadmium and
mercury. So configuration of zinc, cadmium and mercury have their orbital completely filled at both in their the ground state and in their common oxidation state. We have can represent it as ns-1 d10 ns2. So d block element series, total d block element are oxidation state we can represent is n-1 d10 ns2. So they are not referred to the transition element. So they are not referred to the transition elements. Clear? So transition element series are 89 AC 7s2 6d1 and 104 RF 7s2 6d4 and 105 DB 7s2 6d3. So according to Aho principle and Pauli exclusion principle and हुन्स रूल मल्टीप्लिसिटी रूल लॉ के अकॉर्डिंग अपन ईजिली किसी भी कंपाउंड का अपन को एटॉमिक नंबर याद हो, किसी भी कंपाउंड का अपन को एटॉमिक नंबर याद हो तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अपन उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं. क्लियर? अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जैसे अपन को याद है तो उसके बाद अपन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के अपन को जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. सबसे पहले अपन ने पढ़ा जो थोड़ा सा अपन रिवीजन में मैं बता दूँ आपको. सबसे पहले अपन ने पढ़ा क्वांटम नंबर, क्वांटम मैकेनिज्म. क्वांटम मैकेनिज्म में अपन ने पढ़ा कि क्वांटम 4 क्वांटम नंबर होते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमेंथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्प्रिंग क्वांटम नंबर. उसके अकॉर्डिंग अपन एक एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पहचान लिया कि इलेक्ट्रॉन को अपन को कहाँ फिल करना है, और उसमें अपन ने लिया ऑर्बिटल, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स अपन को ले लिए. ऑर्बिटल में अपन ने क्या किया, ऑर्बिटल में अपन ने देखा एस पी डी एफ, 4 टाइप्स ऑर्बिटल अपन ने देखे. एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल में अपन ने देखा कि एस ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन फिल इन एस ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन फिल इन पी ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन फिल इन डी ऑर्बिटल एंड 14 इलेक्ट्रॉन फिल इन एफ ऑर्बिटल. क्लियर? इसके बाद में अपन किस तरीके से इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके लिए अपन ने प्रिंसिपल पढ़े 3. फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा अपन ने आहो प्रिंसिपल, सेकंड पढ़ा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड प्रिंसिपल पढ़ा अपन ने हुन्स रूल मल्टीप्लिसिटी लॉ. फर्स्ट प्रिंसिपल आहो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अपन को इलेक्ट्रॉन फिल करने, एक अपने पास एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो अपन को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन द इंक्रीजेज ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्बिटल की इंक्रीजेज ऑर्डर एनर्जी में अपन को इलेक्ट्रॉन फिल करना है. क्लियर? तो उसने ये कह के उसकी बात फिनिश हो गई. तो उसमें अपन ने देखा कि 1s 2s 2p, जो कि एक मैंने उसमें एक एरो लगा के बताया था भाई आप ऐसे ऐसे अपन उसमें से पर्टिकुलर अपन उसको निकाल के अपन एनर्जी ऑर्डर में अपन फिल कर सकते हैं. क्लियर? उसके बाद में पाउली बोलता है कि सेम इलेक्ट्रॉन 2 क्वांटम नंबर में एक साथ नहीं रह सकते, मतलब सेम डायरेक्शन सेम सेट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकते. क्लियर? बट ये कह के इसके बाद में जब हुन्स रूल आया तो उसने बोला कि सेम डायरेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट हो सकते हैं बट सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते, एक अपोजिट होगा, एक अप होगा तो एक डाउन डायरेक्शन में होगा. क्लियर? तो ये हो गया अपने पास हुन्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड वो प्रिंसिपल. ऐसे इसके अकॉर्डिंग फिर अपन ने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का स्टार्ट किया. सबसे पहले एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, फिर अपन ने पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद में डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपन ने स्टार्ट किया. ठीक है? तो ऐसे करके अपन ने टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट का स्टार्ट कर लिया. अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, जिसमें अपन को एस ब्लॉक कहाँ प्रेजेंट होता है, पी ब्लॉक कहाँ प्रेजेंट होता है और डी ब्लॉक कहाँ प्रेजेंट होता है. ये अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.